I'm so happy to see you back. और मैं बहुत ही आनंदित हूँ आप सबों को देखकर। This is a very exciting period of time. और ये बहुत ही उत्साहित समय है हमारे लिए। And today I'm going to talk to you. What did the Lord tell me? I'm going to talk to you. I'm going to let you know why this is an exciting time. और ये उत्साह से भरा हुआ समय है और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा है। Before I begin what God has laid in my heart to talk about today's sermon, but I want to tell you something that God was trying to communicate to me as I was in US. और कुछ चीज़ों को परमेश्वर निरंतर मुझसे बातों में कह रहे थे जब मैं USA में था। And 31st night I arrived to US 2023. 2023 31 तारीख की रात को मैं USA पहुंचा। And 1st of January 2024 in the morning God started talking to me. और 1 जनवरी 2024 परमेश्वर मुझसे बातें करने लगता है। And the Lord told me, this is the year that you will see mighty favor upon your life. और इस वर्ष 2024 खुदा ने कहा तुम एक अद्भुत अनुग्रह फेवर अपने ऊपर देखोगे। All these years they were tormenting demons, retrogression, ill will, and all form of demonic works that was working against you, but not now. It has stopped. और पूरे 2023 तक आपको दुष्ट आत्माएं तंग कर रहा था, ताड़ना दे रहा था, ऑप्रेस कर रहा था, लेकिन खुदा कह रहा अब ये रुक जाएगा। And the Lord told me, I said, God, really? And God says, yes. You will look for your enemies, but you will not find them. और खुदा कह रहा है कि तुम अपने शत्रुओं को ढूंढोगे, लेकिन तुम उन्हें नहीं पाओगे। You won't be able to see them. तुम उसे देख ही नहीं पाओगे। But they will see you from far away. लेकिन वो तुम्हें दूर से देखेंगे। And they will gnash their teeth. और वो अपने दांत को पीसेंगे। But they won't be able to come and harm you. लेकिन वो आके तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। Because I am at work in this year, in your life, in your ministry, and the way you have been prepared and the way you have prepared the people. और मैं इस चर्च के लोगों के जीवन में कार्य कर रहा हूँ और जैसे तुम लोगों ने तैयारियाँ की है और जैसे मेरा कार्य लोगों के जीवन में हुआ है, एक तुम नए काम को देखोगे। In fact, my 1 full month in US was amazing. और 1 महीना जो मैंने वहाँ बिताया बहुत ही अच्छा और बहुत ही अद्भुत था। And I was wondering, God, why so much of favor? और मैं पूछ रहा था खुदा से, खुदा इतना अनुग्रह क्यों? Because God says, I have a plan. और खुदा ने कहा कि मेरे पास एक योजना है, I have a purpose. मेरी एक उद्देश्य है। And then a special prayer that came into my spirit and I started crying out to the Lord that prayer. और मेरे अंदर एक प्रार्थना उठा और मैं खुदा के सामने उस प्रार्थना में रोने लगा। And that prayer was, God, send me your sons and daughters. और मेरी प्रार्थना थी, खुदा तुम अपने बेटा और बेटी को भेजो। Who were actually ready. They were in captivity, but now they will come and be part of the vision, the sons and daughters. और तुम्हारे बेटा और बेटी आएंगे और तुम्हारे दर्शन का एक हिस्सा बनेंगे। Sons and daughters. Again, I repeat the word called sons and daughters. और फिर से मैं उस वचन को दोहराता हूँ कि तुम्हारे बेटा और बेटी आएंगे। And I was wondering, God, sons and daughters, I've been pastoring for 19 long years in this city. But Lord, I have seen so much of betrayal. I haven't seen real sons and daughters. But God says, now you will see the real sons and daughters coming and standing alongside. और मैंने कहा खुदा मैं 19 से 20 साल यहाँ सेविकाई कर रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ धोखा देखा है, मैंने सचमुच का बेटा बेटी कहाँ देखा है। लेकिन खुदा ने कहा अब तुम सचमुच का बेटा और बेटी देखोगे। Amen. Hallelujah. And of course I believe, I believe in all my heart and my spirit, sons and daughters are coming. और मैं विश्वास करता हूँ बेटा और बेटी आ रहे हैं। And even in United States, where I was there, I saw many sons and daughters getting attracted to me, and I could influence their life as a father.
और यूनाइटेड स्टेट्स में भी मैंने देखा बहुत सारे बेटे और बेटी मेरी ओर आकर्षित हो रहे थे और एक पिता के रूप में मैं उन पे एक प्रभाव डाल पा रहा था. And as if I felt like those people were एकदम ready. They were ready to take the work of the Father in heaven. और मैंने देखा कि ये बच्चे बिल्कुल तैयार हैं परमेश्वर के कार्य को करने के लिए. And it is not only sons and daughters of Durgapur, but the sons and daughters across the world going to come together for a purpose. और केवल बेटा बेटी दुर्गापुर के नहीं बल्कि विश्व के बेटा बेटी एक संग जुटेंगे परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने के And लिए. the other prayer that God laid into my spirit was, God send me the last harvest prepared. The harvest, those people who are ready to be gathered, people who are ready to come and follow the Lord, they are there. But you know, the special prayer when God laid into my heart and I started crying out, and I believe people who are ready, are chosen people, elect people, would be drawn towards the body of Christ as never before. और मैं जब प्रार्थना कर रहा था कि पिता वो जो अंतिम फसल है जो तैयार है उद्धार के लिए और परमेश्वर उन्हें जमा कर, और खुदा ने मुझसे कहा कि परमेश्वर कुछ ऐसा काम करेंगे, ये जो अंतिम फसल है ये खुद ब खुद परमेश्वर की ओर आकर्षण होने लगेंगे. You know, like people at Durgapur Church and those who are listening online, I want to tell you, you would be seeing people across the globe from your city, community, all of a sudden as if they were prepared, they would be joining back into the house of God. और जो दुर्गापुर शहर में हैं, जो ऑनलाइन में सुन रहे हैं, आप देखेंगे कि परमेश्वर के घर में तेजी से कुछ लोग जो अंतिम दिनों के चुने हुए हैं वो जुड़ना शुरू कर देंगे. And the third prayer that God laid into my heart and I started praying was, God, the way you have prepared us over these years, now God reveal your glory through our lives to the nations. और मैंने कहा तीसरा प्रार्थना कि पिता जैसे तूने हमें तैयार किया है, हमें राष्ट्रों में अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर. Amen. Hallelujah. हालेलुया. So now I believe and I see in my spirit that it is not only like United States, but different parts of the world is opening और for our ministry. और केवल यूएसए नहीं खुल रहा बल्कि नए नए राष्ट्र भी मैं खुलता हुआ देख रहा हूँ सेविकाई के लिए. In fact, this 2023 we're going to make a lot of international trips, so don't be amazed, because the Lord is going to do that, because the Lord has prepared us. और 2024 में हम और भी राष्ट्रों में जाएंगे और आप सुनेंगे ये, लेकिन आप अचंभित ना होंगे क्योंकि ये परमेश्वर ने हमें तैयार किया है और जो परमेश्वर ने जिस काम के लिए तैयार किया है उसे परमेश्वर पूरा करेगा. Amen. So this prayer, this 3 prayer point was lingering into my spirit and I was crying out to the Lord. और ये तीनों ही प्रार्थना मेरे आत्मा में उमड़ रहा था और मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, मांग रहा था. Well, this morning it is the same message that God has laid into my heart, and I want to speak out to you what exactly God is speaking from His Scripture. और जो परमेश्वर ने वचन मेरे आत्मा में रखा है अब मैं इसे आपके जीवन में खोलना चाहता हूँ. You know, I want to speak on a topic called 4 corners. और मैं आज 4 कॉर्नर्स 4 कोनों के बारे में बातें करूंगा. Let's use the word called Disha. 4 दिशा के बारे बात Purab, करूंगा. Paschim, Uttar, Dakshin. 4 corners of the world. और 4 कोने के बारे बात करूंगा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण. You know, basically what does it mean, 4 corners? और ये 4 दिशा का अर्थ क्या है? 4 corners basically means all direction. और ये 4 कोने का मतलब है ये 4 दिशा. It means all around, all over, everywhere. चारों ओर, हर जगह, सब जगह. You know, and it also indicates that completeness from all quarter, all side, all around, all over. It means a completeness that we're going to experience. और इसका मतलब है संपूर्णता, कंप्लीटनेस. हम चारों ओर से परमेश्वर की एक संपूर्णता को अनुभव करेंगे. See, you might say, I need money, but if you get money on the other corner, you are sick. Are you experiencing completeness? No. आप कहते हैं मुझे पैसे की ज़रूरत है और पैसा मान लीजिए आ भी जाए, लेकिन अब आप बीमार हैं तो क्या वो जो पैसा आया वो सचमुच आशीष है? क्या आपने संपूर्णता देखा? नहीं. So if you get blessing from one quarter but the other corner is not blessed, that means your blessing will not stand. You will not experience completeness. You will not experience freedom. And you know,
complete freedom in your life, ministry, marriage, in your relationships and various other things. मान लीजिए एक दिशा से आशीष आ रहा है लेकिन दूसरे दिशा में हानि है, खोई खोती है या तंगी है, तकलीफ है। दैट मीन्स आप संपूर्ण आशीषों को चारों ओर से नहीं पा रहे, एक कोना कहीं ना कहीं अंधकार के हाथ में पकड़ा हुआ है। So many people seated over here, you come to the Lord, come to the church, you experience blessing, but one corner is being used and exploited by the enemy. और आप चर्च आ रहे हैं, आप आशीष पा रहे हैं, लेकिन आपके जीवन का एक दिशा या एक हिस्सा निरंतर शैतान के हाथ में, उसके कब्जे में पड़ा हुआ है। Are you with me, church? क्या आप समझ रहे हैं चर्च? That's the reason even in our ministry, Sarita and I, we would go 2 days great, and the third day from one corner there will be an attack. So on the 5th day we will be discouraged. और सेविकाई में भी हम 2 दिन बहुत अच्छा करते, सब कुछ बहुत आनंद से करते, लेकिन किसी न किसी कोने से शैतान हमें आक्रमण करता और फिर हम निराश हो जाते हैं। So that is the reason, like we try to figure and find out which way the enemy is trying to attack us. और हम निरंतर खोजते रहते हैं वो कौन सा दिशा है, कौन सा जगह से शत्रु हमें आक्रमण कर रहा है। Because Satan is also looking for one corner. और शैतान भी एक कोना, एक हिस्सा, एक दिशा खोज रहा है हमें आक्रमण करने के लिए। Satan is looking for one small little opening in your life, and that's it. और शैतान भी निरंतर एक खुला द्वार खोज रहा है कि वो हमें आघात कर सके। And that is the reason the Lord says, now from all quarter and all over, all around, I will move in your life. और इसीलिए ईश्वर कह रहा है कि मैं चारों दिशा से तेरी ओर तेजी से कार्य करूंगा। Dear friends, I believe walking with the Lord is not an easy task. और मैं विश्वास करता और जानता भी हूँ कि परमेश्वर के संग चलना आसान नहीं है। It is a difficult walk. ये कठिन एक चाल है, कठिन एक वॉक है परमेश्वर It के is a साथ। narrow walk. ये बहुत ही सकरा रास्ता में चलने जैसा एक चाल है परमेश्वर के But साथ। I want to encourage those who have really stood firm in this walk. There is a reward that God is going to bestow upon your life from all 4 corners of the world and around. और जो परमेश्वर के संग इस सकरे मार्ग पर विश्वास योग्यता के संग चले हैं, ये चारों दिशा से उसकी ओर बहुत तायता की आशीष आ रही है। Amen. Are you following, church? Good. So today morning I'm going to talk about basically 3 areas of the 4 corners of the world. और 3 एरिया या 3 भाग में मैं चारों दिशा के आशीषों के बारे कहूँगा। First of all, I'm going to talk about the 4 angels. Okay? First of all, I'm going to talk about the 4 angels. और मैं 4 स्वर्गदूतों के बारे बताऊंगा। Let's read Revelation chapter 1 verse 1 to 3. इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोने पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी के चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। Just imagine now, just try to visualize this picture. अब अपनी कल्पनाओं में इस बात को जस्ट थोड़ा सा सोच कर देखें। 4 corners of the earth, 4 angels of the Lord. और 4 दिशा है और चारों दिशा में 4 स्वर्गदूत स्थापित हैं। If that is true, there are 4 angels even in this house. और अगर ये सच है यहाँ जो लिखा है तो 4 स्वर्गदूत यहाँ पर भी हैं। Amen. Hallelujah. Amen. So there are 4 angels. 4 स्वर्गदूत हैं। They have a role, very distinct role. Now listen, it's very important. So get the word very carefully into your heart. और ये 4 जो स्वर्गदूत है इनका 4 दायित्व है या 4 कार्य है और इस बात को अच्छे से आप समझें। That means God is mindful of every corner. He's not unmindful of even one silly mistakes of leaving one corner empty. और परमेश्वर बहुत ही सतर्क है, सावधान है और बिल्कुल वो एक एक हिस्सा को बारीकी से देखते हैं। एक भी दिशा नहीं है जो उसकी आंखों से ओझल है। So now 4 angels has been deputed across the 4 corners of the earth and they have a distinct role.
और ये जो चारों स्वर्गदूत है ये पृथ्वी के 4 दिशा पे निर्धारित है और इन चारों स्वर्गदूतों का एक निर्धारित कार्य और उद्देश्य भी है। They are holding the winds. वो हवा को थामे हुए हैं। Hawa. What this wind signifies? और ये जो हवा है इसका तात्पर्य क्या है? बताइए आप. What is the wind that signifies? Wind is actually when it falls into the water, there is a storm that comes out. और ये जब हवा जब पानी में तेज रफ्तार से आता है तब ये तूफान को जन्म देता है। तूफान. So the wind is basically, it can destroy things. It's a force. It can destroy things and even it can shift things. और हवा में इतना शक्ति है कि जब ये तीव्र गति पकड़ता है तो ये चीज़ों को बहाव में बर्बाद कर देता है। और ये हवा में इतना तेज भी है कि जब ये हवा किसी चीज़ को ले उड़ता है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा भी देता है। Tornadoes, hurricanes, Katrina. You must have heard of all these names. और ये जो घिरनी चक्र है, तूफान है, टोर्नाडो है, ये जो बार बार ये जो तूफान आता है, you must have heard of all these names. What are these? This has destroyed nations, cities, towns, homes, families and everything. और ये जो घिरनी चक्र उड़ता है क्या करता है? शहर, गांव, घरों को, पेड़ों को, हर चीज को जो इसके रास्ता में आता है विनाश कर देता है। Quite often we say like मेरा जिंदगी में एक तूफानों का बीच में मैं खड़ा हूँ. What does it mean? You know, I'm standing in midst of a storm. Storm is like destruction in your life. So many people sitting over here are in midst of a storm. अब बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा जीवन तूफानों से घिरा हुआ है, अर्थात उसके जीवन में इतनी सारी चुनौतियां और कठिनाई है कि उन्हें अपना जीवन तूफान जैसा लगता है। और शायद यहाँ बहुत जन होंगे जो तूफानों में शायद घिरे हुए होंगे। And the enemy wants to bring storm in our lives. और शत्रु का काम ही है कि वो हमारे जीवन में तूफानों को खड़ा करते हैं। And when the storm comes, destruction comes along with it. और जब तूफान आता तो बर्बादी भी उसके संग संग आता है। You know, destructions of life, death and all sorts of things that happens. बर्बादी, मृत्यु, हर प्रकार का विनाश कार्य, हर चीज तूफान के द्वारा घट जाता है। My brothers and sisters, these 4 angels have been deputed at the 4 corners of the earth to stop the wind. और इन स्वर्गदूतों को 4 दिशाओं में निर्धारित किया ही गया है कि उस हवा को वो थाम ले, उसे वहां रोक दे। For us, hallelujah. हमारे लिए, hallelujah. Hallelujah. The Lord wants to stop the storm. Now, I want to tell you, let the storms be stopped because the Lord is holding the wind. और परमेश्वर चाहता है कि ये तूफान, ये हवा का बहाव रोक दिया जाए, क्योंकि परमेश्वर ने इस हवा को अपने हाथों में थाम लिया है, रोक दिया How है। many of you believe this? आप में से कितने जन विश्वास करते हैं? I don't know whether you are able to understand or not, because this is very prophetic. And this is what God was trying to tell me. And today I have a scriptural basis to talk on this. और ये बहुत ही प्रोफेटिक है। आपको इसे समझने की ज़रूरत है और विश्वास करने की ज़रूरत है कि जब आप विश्वास करेंगे सचमुच हर तूफान जो आपकी ओर बह रहा खुदा ने रोक दिया है, तो आपके विश्वास से आपके भविष्य में आप इन चीज़ों को सचमुच अनुभव करना शुरू कर देंगे। And it says it did not blow on the earth. और ये पृथ्वी पे नहीं बहा, It did not blow on the sea. ये समुद्र पे नहीं बहा, It did not blow on the tree. ये पेड़ों पे नहीं बहा। Keep reading that. फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूर्व के ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था ऊंचे शब्दों से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर ना लगा दे तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। Keep reading it. Okay, verse 3. जिन पर मुहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इजराइल के संतानों के सब गोत्रों के 1,40,000 पर That's मुहर दी it. गई। Now, why God is stopping the wind at the 4 corners and why God is giving us some added time
It is because he is gathering his sons and daughters. He is gathering his elects. He is gathering his chosen people across the globe. और ये परमेश्वर ये 4 स्वर्गदूतों को कहकर हवा के बहाव को क्यों रोक रहे हैं? वो हमें ये थोड़ा सा समय, शांति का समय, निश्चिंत होने का समय क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो अंतिम दिनों में अपने बेटा और बेटी को जमा करना चाह रहे हैं. So that's the reason. This is a time for the church to experience a revival. I mean, those who have been prepared, they will experience a revival. The prayer that we've been praying, the shout that we've been giving, shout to the Lord. Now the Lord says, now, Anugrah family, I want to tell you now, my sons and daughters are going to be gathered all over the world. And this is the reason, this time of the angels holding on, the wind and the storm, that the sons and daughters would be gathered and the chosen people would come. और ये जो समय हमें दिया जा रहा है, एक शांति का समय, इसलिए ताकि पिता के चुने हुए बेटा और बेटी जमा हो सके. जो उसके चुने हुए संतान है, उसके लाइफ में तीव्र गति से रिवाइवल का कार्य आरंभ हो जाएगा. My brothers and sisters, I being a father and she being a mother, we would never want our children to stand in front of a storm. और हम दोनों माता पिता होने के नाते हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे तूफान का सामना करें या तूफान में जाके गिर जाए. It is a time that we will protect our sons and daughters because we love them and she has accepted us as her parents. और हम उसके माता पिता होने के नाते हम उस तूफान के सामने हम खड़े हो जाएंगे. अपने बच्चों को हम सुरक्षित करेंगे क्योंकि उसने हमें माता पिता के रूप में विश्वास किया है और हमने उसे संतान के रूप में ग्रहण किया है. Revelation chapter 4 verse 6 to 8. 4 verse 6 to 8. और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौर के समान कांच का सा समुद्र है. सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं. Again the 4 angels, where they are surrounding the throne of God. और ये 4 स्वर्गदूत अब कहाँ हैं? अब ये 4 स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर हैं. Keep reading. पहला प्राणी सिंहासन के सामने है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है. पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है. तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथे प्राणी उड़ते हुए उखाब के समान है. Keep reading. चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं और वे रात दिन बिना विश्राम लिए ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है. So these 4 angels are stopping, holding the 4 corner of the earth to stop the storm that the sons and daughters will come to the house of the Lord to worship the King of Glory. So this is a Kairos time to worship the Lord. और ये जो चारों स्वर्गदूत है चारों दिशा के हवा के बहाव को थामे हुए हैं कि परमेश्वर के बेटा और बेटी उसके घर को आएंगे और वो जीवित परमेश्वर को महिमा देंगे, उसकी स्तुति और वंदना करेंगे. Now we are going to see the real sons and daughters. और अब हम परमेश्वर के सचमुच बेटा और बेटी को देखेंगे. Now we will see the committed people of God. और अब हम परमेश्वर के समर्पित लोगों को देखेंगे. Now we will see the real worship that will reach the heaven. और अब हम उस आराधना को देखेंगे जो आराधना स्वर्ग तक उठेगा. And the 4 corner will stand to bless us. और ये चारों दिशाएं खड़ा हो जाएगा हमें आशीष देने के लिए. And then it says in Matthew 24:31. वो तुरी के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठा करेगा. चारों दिशा से उसके चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा. This is that time. That is the reason. And now the Lord is going to bring people from all around, all across, all group, all nations to his house. और परमेश्वर हर जाति, राष्ट्रीय, भाषा, देश विदेश हर जगह से अपने चुने हुए लोगों को वो इकट्ठा करना अब शुरू कर देंगे. Again I emphasize on the word called chosen, not everybody.
और फिर से मैं कहता हूँ, चुने हुए सबको वो इकट्ठा नहीं करेंगे। जो चुने हुए संतान है उन्हें वो इकट्ठा करना आरंभ कर Who देंगे। was this chosen people? ये चुने हुए लोग कौन हैं? Who stood before the Lord in midst of all trials and tribulation. They said, okay, God, no matter what comes on my way, but I desire to stand before you. And they have proved their commitment and allegiance to the Lord. These are the chosen and anointed people of God. Now this is the time for them to experience the reward and blessings. और ये वो लोग हैं जो हर चुनौतियों का सामना किए, हर संघर्ष से वो गुजरे, और फिर भी उसने कहा कि खुदा तेरे सामने मेरा सिर झुकता है और तुझे छोड़ कोई और मेरा ईश्वर नहीं। अर्थात वो हर ताड़नाओं से गुजर के परमेश्वर को परमेश्वर मानकर चले। When they came to church, there was a problem in the house. They said, no worry, I will still go to the church. और वो जब वो चर्च आए, घर में समस्या उठ गया, फिर भी उसने कहा मैं चर्च जाऊंगा। I will go to the church even my husband doesn't like, but I love the Lord and I will stand for the Lord. God is going to reward you. Take it from me. और तुमने हर स्थिति में परमेश्वर से प्रेम किया, चाहे जो भी तुम्हारे जीवन में बीत रहा था। You have proved your commitment unto the Lord. और तुमने अपने समर्पण को परमेश्वर के सामने साबित किया। You didn't look to your problem and said that my problem is so big, but you look to the Lord and say my God is so big, so I will go to the Lord no matter what comes. But I tell you, now is the time for you to see the goodness of God from four corners of the world. और जो भी समस्या आया, आपने यही कहा कि हर समस्या के बावजूद मैं केवल परमेश्वर की ओर देखूंगा, और आप हमेशा परमेश्वर के संग जुड़े हुए थे और उसकी ओर देखते रहे। Many people started this race, but not all which stood in this race, but few were chosen. Many were called, but few were chosen. But who would stood this race? For those who stood firm till the last, and they are the one who's going to experience the goodness of God during this time. और बहुतों ने ये दौड़ आरंभ किया, लेकिन वो टिके नहीं, वो बीच में आउट होने लगे। लेकिन अंत तक जो इस रेस में टिका रहेगा और जो अंत तक प्रभु को थामे रहेगा, वही इस दौड़ में जीतेगा। Again it says in Mark chapter 13 and verse 27. उस समय वो अपने दूतों को भेजकर पृथ्वी के इस छोर से आकाश के उस छोर तक, इस छोर से आकाश के उस छोर तक, चारों दिशाओं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। Amen. Hallelujah. So I am very hopeful. Are you hopeful? Now the Durgapur is going to experience the Lord, the harvest, the right people, for the sons and daughters who are genuinely seeking the Lord. I prophesy they will be coming in this Anugrah church. Now this church is going to be small and we need a big space for worship the Lord. और मैं घोषणा करता हूँ, मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से पिता के संतान आएंगे उसकी आराधना करने के लिए, और ये जगह छोटा पड़ने वाला है उसकी आराधना के लिए। Very soon we are going to leave this place. अब बहुत जल्द हम इस स्थान को छोड़ देंगे। We are going to have a big church. और हमारा बड़ा चर्च होगा। Because people are coming. और लोग आ रहे हैं। People are coming from the east. लोग पूर्व से आ रहे हैं। From the west they are coming. पश्चिम से वो आ रहे हैं। From the north they are coming. उत्तर से वो आ From the रहे हैं। south they are coming. दक्षिण से वो आ रहे हैं। From all four corners they are coming. चारों दिशाओं से वो आ रहे हैं। The people who are chosen and elected, the sons and daughters. और जो चुने हुए हैं, जो बेटा और बेटी है, वो हर दिशाओं से आ रहे हैं। And this church is small for them. और ये चर्च उनके लिए छोटा है। All people cannot be over here in this church. This is a tiny little space. और हर कोई इस चर्च में जमा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये जगह छोटा है। So now the Lord's going to give us a big church. और परमेश्वर अब हमें एक बड़ा चर्च से आशीषित And करने I'm not वाला। predicting anything out of my imagination, but I'm predicting based on the word of God. And I prophesy and stand and I decree and declare our new church is coming. और मैं अपनी कल्पनाओं से या मन की भावनाओं से बह के नहीं कह रहा हूँ, मैं सचमुच विश्वास से भविष्यवाणी कर रहा हूँ, घोषणा कर रहा हूँ कि हमारा खुद का बड़ा चर्च आ रहा है। Revelation chapter 7 and verse 9. प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी थे। People from every tribe, every nation, every language, from every place, people going to come.
हर जाति, कुल, भाषा की बड़ी भीड़ परमेश्वर के पास जमा होने It वाली is है। a spiritual aliyah. इसे कहता है अलिया। What does it mean? ये अलिया का अर्थ क्या है? Basically, aliyah means return of the Jews to the promised land. और अलिया का अर्थ है कि हर यहूदी अपने देश को वापस आ रहे हैं। Before the return of the Lord, यीशु के जो आगमन है, उस आगमन के पहले जब चारों दिशा से यहूदी अपने इस्राएल राष्ट्र को वापस लौट आएंगे, उसे अलिया कहा जाता but है। for us, we believe in rapture. They don't believe in rapture, and this is a spiritual aliyah. That means people from all tribe, caste, creed, and nations and language are coming back to the house of the Lord. और जो शारीरिक अलिया इज़राइल के लिए घटेगा, वो आत्मिक अलिया है चर्च के लिए, क्योंकि चर्च में अब वो गैदरिंग, वो लोग चारों दिशा से आकर जमा होंगे जो रैप्चर होने वाले हैं। You know, I am not any longer going to see the scorpions and the snakes and the serpentine spirits. Enough of Jezebel and Ahab and Absalom and Leviathan. We have fought, but now we will see the true sons and daughters of Christ. And this will be a house of worship unto the nations. और अब हम सांप और बिच्छुओं को नहीं देखेंगे, ना हम जज़बल देखेंगे, ना आहाब पाएंगे, ना हम लेवाइथन या पाइथन देखेंगे, ना एब्सलोम, ना बालम, ना कोराह को पाएंगे। अब परमेश्वर के संतान उसके घर में जमा होंगे। And we would celebrate. We would worship, we will dance, we would glorify the name of God. We will go for picnic. We will have our cricket match. We will worship the Lord. We would celebrate the Lord. The festive movement is coming in this house, in this church. और परमेश्वर का आनंद समारोह उसके घर में और ज़्यादा बहने वाला है, और उसका सेलिब्रेशन उसके घर में होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Isaiah chapter 11 and verse 12. Let's read what it says. और यशाया कहता है, वो जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इस्राएल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी के चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। That's Aliyah. और यही है अलिया। But we are going for a spiritual Aliyah. और ये है जो इज़राइल के संग शारीरिक रीति से होता है, वो चर्च में आत्मिक रीति से होता है। Amen. और ये हमारा Hallelujah. आत्मिक अलिया होने वाला Hallelujah. है। Do you believe the church is going to grow in leaps and bounds? और हम विश्वास करते हैं चर्च तीव्र गति से बढ़ने वाला I है। believe this. We मैं इस बात पे believe this. विश्वास करता, हम दोनों विश्वास Because the करते word हैं। of God is telling me it is going to come to pass. और ईश्वर का वचन ये कह रहा है कि ये पूरा होने वाला है। And that's the reason it says completely, Psalm 71 verse 20 and 21. When I said this last Wednesday, this is what it meant. और पिछले बुधवार को धन्यवाद की सभा में मैंने ये वचन बताया था। इसका मतलब ये है, मैं जो आज बताऊंगा, तूने तो हमको बहुत से कठिन कष्ट दिखाए हैं, In the sense, that means we have gone through hardship in the past, but not now. हम बहुत सारी कठिनाइयों से अतीत में गुजरे हैं, लेकिन अब नहीं। Finish that. परंतु अब तू फिर से हमको जिलाएगा और पृथ्वी के गहरे गड्ढे में से उबार लेगा। Amen. This is what God is trying to say. Now, God's going to draw his people together. All the pain that we have gone through, all the agony that we have gone through, now it is a time for call out and to say, stop, stop, stop. और अब परमेश्वर अपने बच्चों को अपने घर में जुटाएगा, जमा करेगा। हर दुख, हर ताड़नाओं को ये कहने का समय आ गया है, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। Read the next verse. तू मेरे सम्मान को बढ़ाएगा और फिर कर मुझे शांति देगा। Amen. Now we're going to experience this peace. और अब हम परमेश्वर की शांति को अनुभव Now we करेंगे would be moving in the right direction. और हम अब सही दिशाओं में बढ़ने वाले हैं। Because from four corners, we would be protected. The Lord himself is going to protect us. और परमेश्वर स्वयं हमें सुरक्षित करने वाले The हैं। Lord's going to provide us. परमेश्वर हमारा प्रबंध करने वाले The हैं Lord is going to do great things. और परमेश्वर हमारे बीच में महान महान कार्य करने वाले हैं। And today, as a pastor of this church and my wife, we say thank you, Lord. और एक पास्टर होने के नाते इस चर्च के हम ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं। Amen. Hallelujah. Amen. So now I've spoken about the four angels. Now I'm going to talk about the four beasts.
और अब मैंने आपको 4 स्वर्गदूतों के बारे बताया। अब मैं 4 जानवरों के बारे, बीस्ट के बारे बताऊंगा। That means 4 evil spirits. ये है 4 दुष्ट आत्माएं। It means 4 strategy of the enemy in this world that is going to happen simultaneously when there will be a spiritual aliyah. It is alarming and it is fearful and it is a scary things. और जब आत्मिक अलिया घटेगा, जब आत्मिक कार्य चारों दिशा से बहना शुरू होगा, चारों दिशा से दुष्टता और दुष्ट आत्मा का काम भी उसी प्रकार से तीव्र गति से बहना शुरू होगा। This is very, very serious thing. Let's read Daniel chapter 7. हम डैनियल का 7 देखते हैं। And then I want you to read from verse 2. डैनियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। आंधी चलने लगी. Again back to the wind. And now I am talking about the storm. और अब मैं यहाँ देख रहा हूँ क्या कि समुद्र पर अब आंधी चलने लगी, जबकि मैंने बताया कि उस हवा को थाम लिया गया है। You know, then what happened? Read that. तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। 4 दिशा, 4 स्वर्गदूत, 4 जंतु यानी कि 4 satanic spirits where it came from the sea. और मैंने बताया 4 दिशा, 4 स्वर्गदूत, और अब ये है 4 जंतु या जानवर जो 4 दिशा से निकल आए। Now I don't want to read the entire chapter, but I will pick up some verses. Okay, let's read a verse 4. अब हम 4 देखते हैं। पहला जंतु सिंह के समान था और उसके पंख उकाब के से थे। मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए और वो भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांवों के बल खड़ा किया गया और उसके मनुष्य का हृदय दिया गया। मनुष्य का हृदय, English Bible says the spirit has a mind of human. और ये जो दुष्ट आत्माएं हैं इनका मन मनुष्य जैसा है। You know, so that means that this spirit now we're going to attack the minds of every human being. Those who are not ready, those who are not chosen, those who are not elected, those who are, they were finding Christ to be fun game. Now this is what is going to happen to them. और ये वो लोग जो चुने हुए नहीं थे, जो परमेश्वर का बड़ा हल्का लिए या परमेश्वर के संग समर्पण के संग नहीं चले, उसकी पवित्रता का मान नहीं रखे, अब उनके मनों को शैतान आक्रमण करने वाला, ये दुष्ट आत्मा आक्रमण करने वाला है। So what is going to happen in the mind? अब उनके मनों में क्या घटने वाला है? Confusion. वो विचलित होने वाले हैं। They would not know what is from the Lord and what is not from the Lord. और वो समझ नहीं पाएंगे कि ईश्वर की ओर से क्या है और ईश्वर की ओर से क्या नहीं है। They will think they are with God, but they will be living in greater confusion, and actually they would not be with God. There will be a greater deception that would take over their mind. वो सोचेंगे कि वो ईश्वर के संग चल रहे हैं, लेकिन वो ईश्वर के संग नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनके मन को अब शैतान ने छलना में डाल दिया है, इसलिए वो भ्रमित हो चुके हैं। You would see this thing happening. There would be a lot of fear, chaos and confusion that would be ruling in the minds of the people. और लोगों so called the Christians. और लोगों के मन में, खासकर विश्वासियों के मन में भय, आशंका, विचलित हो जाना, छलना का कार्य करना, ये बहुत तेजी से आप देखना शुरू कर देंगे। Mind will be attacked. मन अटैक होना शुरू हो जाएगा। If your mind is attacked, your peace is ransacked. और जब आपका मन आक्रमण में आ जाता है, आप अपनी शांति खो बैठेंगे। And when your peace is hijacked, you are very vulnerable before the enemy. और जब आपकी शांति आप खो देंगे, आप शैतान के सामने खुले द्वार के समान बन जाते हैं। You will read the Bible, they will read the Bible, but they would not be able to hear from the Lord. वो बाइबल पढ़ेंगे, लेकिन वो परमेश्वर से कुछ सुन नहीं पाएंगे। They will come and attend the church, but they would not be able to hear from the Holy Spirit. वो आएंगे, चर्च अटेंड करेंगे, लेकिन वो होली स्पिरिट से कुछ सुन नहीं पाएंगे। Because their mind will be confused. क्योंकि उनका माइंड कंफ्यूज और विचलित होने वाला है। Because they have believed on a lie when time was there, but they did not give heed to the word of God and turned back to the Lord. क्योंकि जब समय था, उन्होंने परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, उस वचन की ओर वो मुड़े नहीं। That's the reason there will be a greater deception and delusion. और इसीलिए इन अंतिम दिनों में एक बहुत बड़ा छलना, डिसइल्यूशन लोगों के ऊपर उतरने वाला है। The second
second thing that the spirit is going to do, the second thing, और दूसरी चीज जो ये दुष्ट आत्माएं करेंगी, verse 5. फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था और एक पांजर के बल उठा हुआ था और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। उठकर बहुत मांस खा. What does it mean? Devour the flesh of many people. और लोगों के मांस को खा, बहुत सारे लोगों के मांस को खा। So that means there will be a lot of sickness. और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारी बीमारियां आने वाली हैं। ऐसे बीमारी जिसका नाम सुना नहीं गया, अचानक से. So this evil spirit is actually bring about sickness in the body of human being. और ये जो दुष्ट आत्माएं हैं वो लोगों को रोग और बीमारी देने वाला है। There will be a lot of death. बहुत सारी मृत्यु घटने वाला है। And there will be a lot of diseases. अब बहुत सारे रोग आने वाले हैं। And there will be a lot of physical assault. अब बहुत सारे शारीरिक शोषण या ताड़नाएं होने वाली। And they will say, God, we believe in you. Why, God? और वो कहेंगे, पिता हमने तो आप पे विश्वास किया, तो ये सारी कष्ट, ये ताड़नाएं क्यों? 2024. ये 2024 के बारे में कह रहा हूँ। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा। But I'm telling you the truth. मैं तुम्हें सच्चाई को कह रहा हूँ। If there is good, there is also an evil. अगर अच्छा हो रहा है तो बुरा भी होगा। Amen. Hallelujah. If there is favor, that means there is also an oppression. अगर फेवर है तो ऑपरेशन भी है, शैतानिक दबावट भी है। And that's the reason Christianity is all about your choice. इसलिए मसीही जीवन तुम्हारे चुनाव पर आधारित है। There is always 2 roads, but you have to choose the right road. हमेशा तुम्हारे सामने 2 रास्ता होगा, तुम्हें सही रास्ता चुनना है। One is from the Lord and one is from the evil. एक परमेश्वर की ओर से आता है और एक शैतान की ओर से आता है। There will be light and there will be darkness. You have to choose which direction you want to walk. और एक रोशनी का रास्ता है और एक अंधकार का रास्ता है, तुम्हें चुनना है तुम कौन से रास्ता पे चलोगे। This was Jesus telling his disciples, John chapter 14. और यही यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं। My brothers and sisters, what has been your walk thus far? और मेरे भाई और बहन, अब तक आप कैसे परमेश्वर के संग चले? So that's the reason I said from the 4 corners of the earth there will be emerging 4 beasts. One will come and attack the mind of the people. One will come and attack the body of the persons. और मैंने कहा वो जो दुष्ट आत्माएं निकलेंगे वो किसी के मन को आघात करेंगे तो किसी के शरीर को आघात करेंगे। And then verse 6 says, इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख है और उस जंतु के 4 सिर थे और उसको अधिकार दिया गया। 7 उसे अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद अधिकार दिया गया। That's it. That means great authority was given to this beast. Great authority. Okay. और ये जो चीते जैसा पशु था जिसके पंख थे उखाब के समान, इसे बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया। यानी कि छोटा मोटा प्रार्थना करने से नहीं जाएगा। मैंने प्रार्थना किया, 5 मिनट प्रार्थना किया, 10 मिनट बाइबल पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। You would not be able to withstand this because this is real authority. That's what Bible is talking about. और आपका 5-10 मिनट का प्रार्थना इन सब चीजों का सामना नहीं कर पाएगा, आप टिकेंगे नहीं इन सारे चीजों के सामने। You might say, oh, I come to the church. Oh, why didn't you come to the church? Oh, I didn't get time. Now all your casual life you will start paying for it. और लोग जो बहाना करते हो, मैं चर्च नहीं आ पाया, मैं थोड़ा काम था, मैं फंस गया था, समस्या में था, ये जो लापरवाही वाले जितने सारे चाल है, लोग अब इसका दाम चुकाना शुरू कर देंगे। It is scary. और ये डरावना है। This is scary. I tell you, this is scary. ये डरावना है। There will be a great rise of witchcraft spirit. और बहुत ज्यादा अंतिम दिनों में witchcraft powers अर्थात आत्मिक जो जादू टोना होता उसकी शक्तियां बढ़ने लगेगी। There will be a lot of attacks on the marriages and families and upon the children. Listen to me.
अब बहुत सारे आक्रमण विवाहों में, परिवार में, खासकर बच्चों के ऊपर होना शुरू हो जाएगा। Many marriages will be at the verge of breaking. Christian marriage, I am telling you. और बहुत सारे मसीह विवाहित जीवन टूटने के स्थान में आ जाएगा। Many men and women will fall into extramarital affairs. So-called Christians. तो बहुत सारे स्त्री और पुरुष, भले ही वो मसीही क्यों ना हो, वो गैर विवाहित संबंधों में जुड़ना शुरू कर देंगे। So there is going to be the elements that would stand against actually human beings. The earth, the land, the water, the fire, the sky and the wind will stand against. The elements will be used by these demonic forces to attack human beings, so-called Christians. और ये जो पृथ्वी है, हवा है, वायु है और अग्नि है, ये जो पंचभूता है, इसे शैतान सचमुच इस्तेमाल करना शुरू कर देगा मनुष्य के विरुद्ध में। And the fourth beast from the four-cornered. और चौथा जो जानवर है चौथे दिशा से, verse 4, verse 7. वर्स 7 में, फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना और बहुत सामर्थी है और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वे सब कुछ खा डालता है और चूर चूर करता है और जो बच जाता है उससे पैरों में रौंदता है। वो सब पहले जंतुओं से भिन्न है और उसके बाद सिंह है, उसके 10 सिंग है। That means this is the very ferocious beast. और ये जो चौथा जानवर है बहुत ही ज्यादा भयंकर और डरावना और बहुत ज्यादा सामर्थ्यशाली है। पैर के नीचे दबा के खत्म कर देगा, लोहा को तोड़ देगा। You know what is this? आपको मालूम है ये कौन सा जानवर है? A rise of an evil political system. और ये है अंतिम दिनों में जो हम जानते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम या लीडरशिप खड़ा होने वाला है। We are all under a strong political governance. Do you know this? क्या आपको मालूम है कि हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम्स चलाता है? The system, we are under a system and systems are actually executed by the politicians in the assemblies. और ये जो पॉलिटिशियंस है जो असेंबलीज में बैठ के नया नया विधान और विधि और नियम बनाते हैं, उसी से देश चलता है। Such intense, difficult political laws will be implemented where you would not be able to withstand. और एक ऐसे ऐसे नियम आ जाएंगे, ऐसे ऐसे नियम लागू हो जाएंगे जो तुम्हारे लिए सहना कठिन हो जाएगा। Corrupt systems will be implemented. When corrupt system will be implemented in your city, town and your country, you will pay for it. और जब करप्ट बने, करप्शन से भरा हुआ जब नियमों को बनाया जाता है, मनुष्य उसके बोझ के नीचे तड़पना शुरू कर देता है। As we hear and we see all across the world the rise of an evil political system, India is also part of it. और जब ये पूरे वर्ल्ड में एक दुष्ट पॉलिटिकल सिस्टम खड़ा होगा, भारत भी उसका एक अंश होगा। Because the enemy is moving not only in this country but all around the world. और शत्रु केवल भारत में काम नहीं कर रहा, पूरे विश्व में वो काम कर रहा है। You know, this is just a glimpse of the tribulation that is going to come, but it is already at work. और ये जो ट्रिब्यूलेशन, वो जो ग्रेट ट्रिब्यूलेशन आने वाला है, उसका एक ग्लिम्स, एक पिक्चर जैसा मनुष्य इस समय में देखना शुरू कर देगा। There will be a rise of a Babylonian empire. और बेबीलोनियन एम्पायर खड़ा हो जाएगा। What does it mean? A false religious system that people would be drawn unto. Many churches will start preaching false teachings, false doctrines, false prophets and false pastors would be witnessing during this time. और अंतिम दिनों में वो भूल विश्वास धारा सिस्टम खड़ा हो जाएगा और लोग फॉल्स टीचिंग, फॉल्स सिस्टम, सारे झूठे प्रचार को वो देना शुरू कर देंगे मनुष्य को। So you would be overloaded under this corrupt political systems and a false religious system that is going to be happening. और लोग इस फॉल्स रिलीजियस सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम के दबाव में दबना शुरू हो जाएंगे। And they will live a compromised life. और वो एक समझौता वाला, मेडियोक्रेसी वाला जीवन जीना शुरू कर देंगे। When? ये कब होगा? 2024. 2024 शुरू हो गया है। अगर आपके पास बुद्धि है, कान है, समझ है, आप समझ पा रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? शुरू हो चुका है। So what is happening? One side, the elect people are going to experience
the freedom and worship and a gathering of His chosen people across the globe. But on the other hand, 4 beasts is rising up and is going to attack the body of Christ and scatter them. और जैसे 4 स्वर्गदूत खड़े हो रहे हैं 4 दिशाओं के हवाओं को रोकने के लिए, उसी प्रकार से 4 दिशाओं में 4 जंतु भी खड़े हो रहे हैं दुष्टता के काम के प्रभाव को और आगे बढ़ाने के लिए. So be ready, be prepared for that. Don't get scared. If you have lived a life unto the Lord, committed, it is your rewarding time. But if you haven't, then don't tell me, Pastor, you have spoken. I mean, you've been scaring, but this is going to happen. You're going to see this. और अगर आपने सचमुच प्रभु के संग अपने जीवन जिया है तो सचमुच वो 4 स्वर्गदूतों को आप देखेंगे. और अगर सचमुच आपने प्रभु के संग समझौता किया, लापरवाही के संग चले और आप बहुत ही मीडियोक्रेसी में जिए हैं, तो जब ये दुष्टता खड़ी होगे आपका टिकना कठिन हो जाएगा. Jeremiah 48 and 36 says, इस कारण मेरा मन मोआब और किहेरेस के लोगों के लिए बांसुरी सा रो रो कर अलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमाकर बचाया है वो नष्ट हो जाएगा. English Bible says, enemy is going to attack them from all direction. और शत्रु उन्हें चारों दिशा से आक्रमण करने वाले हैं. My brothers and sisters, it is a very scary time. It is not a fun time. और ये डरावना समय है और ये खेलने का समय नहीं है. So I said about the 4 corners where the 4 angels are holding. और वो 4 दिशा जहाँ 4 स्वर्गदूत खड़े हैं. I have spoken about the 4 beasts that is rising out of the sea to attack the body of Christ. और ये 4 जानवर 4 दिशा से खड़े हो रहे हैं ईश्वर के देह को आक्रमण करने के लिए. Now we're going to talk about the 4 blessings that is going to come and take over your life. और 4 आशीषें जो 4 दिशा से बह रही है आपके जीवन के ऊपर आने के लिए. Amen. Hallelujah. Are you ready for this? Are you ready for this? You know, Ezekiel chapter 36 and verse 24. Let's read out. मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा और देशों में से इकट्ठा करूंगा, तुमको तुम्हारे नीच देशों में पहुंचा दूंगा. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So I am safe. और हम सुरक्षित हैं. This is what God is telling. Don't worry, I will take you into the right place. Amen. और परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और जिस देश में जहां तुम्हें होना चाहिए स्वर्ग राज्य में मैं तुम्हें पहुंचा दूंगा. Not only Swarga Rajya, till the coming of the Lord. That's the reason I'm very hopeful about the church, because that is the spot that God is going to take us. We don't have to look for. Now God is going to look for us and gift us what He has kept for us. और परमेश्वर हमें अपने में बनाए रखेंगे, जो उन्होंने हमारे निर्धारित किया है वो हमें वो देंगे. It is going to be a gathering time. It is going to be a safe coming, safe homecoming. और ये परमेश्वर का इकट्ठा करने का समय होगा और सुरक्षित तरीके से हम घर को वापस जाएंगे. घर को वापस जाएंगे. सब बोलिए घर को वापस जाएंगे. घर को वापस जाएंगे. There's going to be a safe custody. और हम सुरक्षित पाए जाएंगे प्रभु में. We going to be in the right land and the right place. और हम सही भूमि में सही जगह में पाए जाएंगे. एक तरफ आप देखेंगे किस तरह लोग को शैतान अटैक कर रहा, बीमार हो रहा, ऐसे ऐसे रोग से ग्रसित हो रहा, confusion, fear, all kind of delusions, but you would see that good is happening in your life. और जैसे जैसे एक जगह हम दुष्टता को देखेंगे, लोग भ्रमित हो रहे, टूट रहे, गिर रहे हैं और आक्रमण हो रहे हैं, उसी जगह हम ये भी देखेंगे कि लोग जमा हो रहे, इकट्ठा हो रहे, शुद्ध हो रहे, पवित्र हो रहे और तैयार हो रहे अलिया के लिए. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Zechariah chapter 6 and verse 5. Zechariah chapter 6 and verse 5. दूत ने मुझसे कहा, ये आकाश की चारों वायु है जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं. Amen. Hallelujah. So there were 4 spirits that is going and patrolling. If there is a watcher, scanner, eavesdropper spirit, there is a patrolling spirit of the angels that is coming and protecting and seeing and looking and watching and protecting us. जैसे वॉचर, स्कैनर, ईवड्रॉपर स्पिरिट है जो पीछा करते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमें दिन रात देखते रहते हैं, उसी प्रकार से ये स्वर्गदूत भी है जो हमें देख रहे हैं, हमारे संग चल रहे हैं, हमें सुरक्षित कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं. Fear not.
इसलिए तुम डरो नहीं, Fear not. तुम डरो नहीं, Fear not. तुम डरो नहीं। God is with us. ईश्वर हमारे संग है, Emmanuel is with us. इम्मानुएल हमारे साथ है। Our time has come. हमारा समय आ चुका है। Heaven has seen. स्वर्ग ने हमें सुना और देखा है। Lord is going to lift us up. ईश्वर हमें ऊंचा उठाएंगे। This 19 years in the land of Durgapur, my wife and I, we have gone through terrible time, but now good times have come for Amen. us. और 19 साल हम बहुत यहाँ पछड़े हैं, बहुत कष्ट से गुजरे हैं, बहुत मेहनत किए हैं, बहुत निराश हुए हैं, लेकिन अब हम विश्वास करते हैं हमारा इनाम पाने का समय आ रहा है। Amen. Hallelujah. Isaiah chapter 6 verse 2 to 5. 60, yeah. 60। देख पृथ्वी पर जो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है। देखो, वही बात है, देखो, पृथ्वी को देखो, चारों ओर घोर अंधेरिया छाई हुई है। That means from four corners, four beasts is actually attacking the saints of God in this world. और ये जो अंधकार है माने चारों दिशा से वो जो दुष्ट जानवरें हैं वो परमेश्वर के दासों को निरंतर आक्रमण करते हैं। But not now. परंतु अब नहीं। Why? Read क्यों? that. परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, Amen. और उसका Hallelujah. तेज तुझ पर प्रकट होगा। You know, now the light has come. Now the blessing has come. Now the four corners is standing by the angels of the Lord to bless me. और अब परमेश्वर का रोशनी मेरे ऊपर उदय हुआ है। There's a change in the ritu. There is a shift in the environment. There is a prayer that has reached the heaven. Now there is an answer that is coming to us. Now the enemy has been stopped because the Lord wants to do something in gathering his people and empowering his chosen ones. और अब परमेश्वर कुछ कर रहे हैं, अपने लोगों को सामर्थ और बल दे रहे हैं, उन्हें सुरक्षित कर रहे हैं, उनकी दृष्टि हम पर आई है। Amen. Hallelujah. Hallelujah. After that, go to the next verse. जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्राप्त की ओर आएंगे। Hallelujah. So now the kings will come. Are you ready to go and witness to the kings? क्या आप तैयार हैं राजा के पास जाके गवाही देने, साक्षी देने के लिए? You're going to see that. You're going to see the kings coming to the radiance of the light and the nations are opening. और तुम देखोगे कि राजा के पास हम पहुंचेंगे और वो रोशनी में आएंगे, द्वारे खुलेंगे। This time when I was in Sekanas college, you know, like I had a lunch with the chancellor of the college. He's a very big shot, a chancellor of the college. और जब मैं शकाना के कॉलेज में गया था, उस कॉलेज के चांसलर से मिलने का मौका मिला, उस संग मैंने भोजन किया। And as I was having a meeting with the chancellor, I was talking. It seems like, you know, like he's a big profile. He's the top man. Huh? He's the top man. He's the top man of the college. And then he said, "Come on, now I'm going to take you and introduce to the president." और चांसलर ने कहा, आओ मैं तुम्हें अब कॉलेज के प्रेसिडेंट से मिलाता हूँ। So he took me to the president and I stood in between and I got hold of the hand of the chancellor and I got hold of the hand of the president. They're big shots and I started prophesying over their lives. और मैंने दोनों के हाथ को पकड़ा, एक तरफ प्रेसिडेंट था, एक तरफ चांसलर था, और मैंने उनके ऊपर भविष्यवाणी खोलने लगा। I don't know how many PhDs they have done it. I don't know. They're big shots. और उन्होंने कितना PhDs किया है मुझे नहीं पता, वो सब वहाँ के टॉप अधिकारी जन हैं। Hallelujah. Hallelujah. Nations are opening. राष्ट्र खुल रहा है। Big shots are coming to the Lord. और बड़े बड़े लोग परमेश्वर के राज्य की ओर आ रहे हैं। And I thank you, God, and I say, God, thank you. Nations are opening. और पिता को मैंने कहा धन्यवाद पिता, तेरा राष्ट्र खुल रहा है। And then verse 4. 4 अपनी आंखें चारों ओर उठाकर देख, वे सब के सब इकट्ठे होकर तेरे पास आ रहे हैं, तेरे पुत्र दूर से आ रहे हैं और तेरी पुत्रियां हाथों हाथ पहुंचाई जा रही हैं। Amen. हालेलुया। कौन आ रहा है? पुत्र और पुत्रियां। पुत्र पुत्री, और गद्दार नहीं, और बदमाश नहीं, और सांप नहीं, और बिच्छू नहीं। अब बेटा और बेटी आने वाला है across the globe. So church, I want to tell you, when new people come, love them, believe God has sent them.
और जब नए नए लोग आते इस चर्च में, उनसे प्रेम करें, उनसे बातें करें और विश्वास करें उन नए लोगों को खुदा ने हमारे बीच भेजा है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And that is the reason, all across the globe now I am seeing special connections with the sons and daughters. और इसलिए विश्व में भी मैं देख रहा हूँ कि बेटा और बेटियों से मेरा रिश्ता स्थापित हो रहा है। And I tell you, all the young people in this church, I love you. और जितने यंग लोग हैं इस चर्च में, मैं कहना चाहता हूँ that I love you। I'm your father. मैं तुम्हारा पिता हूँ And you're my son. और तुम मेरे बेटे हो And you're my daughters. और तुम मेरी बेटियाँ हो। And I am thankful to God for your lives. और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ तुम्हारे जीवनों के लिए। And I honestly love you. I was missing you. और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें मिस कर रहा था। Thank you, Jesus. और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता For हूँ my तुम्हारे लिए। sons and daughters. मेरे बेटे और बेटियों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। And verse 5. अब 5वां कहता है, जब तू इसे देखेगा और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति का धन संपत्ति तुझको मिलेगी। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। I'm looking for 1,000 sitting capacity church, and I believe God's going to give this. और मैं 1000 सिटिंग कैपेसिटी चर्च को बनाना चाह रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ये संभव I don't know करेगा। how much it cost. मुझे नहीं पता इसका दाम कितना है। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, I don't know. But I know my money is coming. मैं जानता हूँ धन आ रहा है और इस धन को हमने पुकारा भी है। Do you believe this? यस। आपका धन आ रहा है। सुनिए, अगर आपके पास धन नहीं होगा तो आप परमेश्वर के राज्य को कैसे देगा? थिंक अबाउट इट। धन आएगा, कहाँ आएगा? पास्टर के पास आएगा, मेरे पास तो नहीं आएगा। ऐसे सोच रहे सब, बहुत सारे लोग हमको देख रहे से, पास्टर के पास आएगा, मेरा पास नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? If you're the sons and daughters, don't you think that you would be blessed? Don't you believe that you have a purpose? Say that. और अगर आप सचमुच संतान हैं तो आप आशीषित क्यों नहीं होंगे? और अगर आप आशीषित नहीं होंगे तो ईश्वर के घर में धन कहाँ से आएगा? Simple. Are you elect? क्या आप चुने हुए हैं Or are you wicked? या आप Answer me. दुष्ट हैं? Simple answer. Ask this question आप to you. खुद से पूछे, आप चुने हुए हैं ना आप दुष्ट हैं? आपको उत्तर मिल जाएगा। You have the answer. Are you wicked or are you chosen? आप चुने हुए हैं या आप दुष्ट हैं? You decide. I don't have to. But if you're chosen, this blessing comes from you. So when I talk about the sons and daughters, that means you are part of one family. We are one unit. और जब हम कहते हैं बेटा बेटी या एक परिवार, हम सब एक परिवार है। ये आशीष हम पर आएगा, हम सबके ऊपर आएगा। Hallelujah. हालेलुया। Shekinah has sent 17,000 rupees and we're going to 17,000 rupees and we're going to buy a new drum set, electric drum set, and the rest of the money she will pay. और हम एक नया ड्रम सेट लेने वाले, इलेक्ट्रिक ड्रम सेट, और उसके लिए 17,000 शकाना ने भेजा है और बाकी पैसा भी वो भेजते रहेगी। Amen. My daughter is blessed. मेरी बेटी आशीषित है। 18 years old. 18 साल है उसका। Komal is blessed. कोमल भी आशीषित है। All the children, sons and daughters, come on, it is your time. और ये तुम्हारा समय है बेटा बेटी बनकर खड़ा होने का। कोमल ने भी अपना फर्स्ट सैलरी मेरे हाथ में लाके दिया और Come कहा, on, sons and daughters, rise up. सो जितने बेटा और बेटियां हैं खड़े हो जाओ, It is your time. ये तुम्हारा टाइम है। Enough you have gone through hardship and pains and struggles. Now be blessed in the house तुम of the बहुत सारी Lord. कठिनाइयों से गुजर चुके हो, अब आशीषित हो जाओ और परमेश्वर के राज्य में खड़े हो जाओ। Amen. Hallelujah. हालेलुया। This is what the promise of God for this church and this ministry is. और यही है प्रॉमिस, परमेश्वर का प्रतिज्ञा है हमारे लिए। The wealth will coming. और धन आएगा। आएगा? Do you believe? क्या तुम विश्वास करते हो? क्यों आएगा धन? अच्छा, खाएंगे हम लोग, उसी लिए आएगा। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है। This is all about gathering his sons and daughters. Actually, अगर आप देखेंगे ना, our needs are actually little. You cannot eat a lot. You can only wear one pair of dress at one time. और अगर हम अपनी ज़रूरतों की ओर देखें तो हमारा ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बहुत नहीं खा सकते। एक टाइम में हम थोड़ा ही खा सकते हैं, एक टाइम में हम एक ही वस्त्र पहन सकते हैं। एक टाइम में मैं तो एक ही जूता पहन सकता हूँ, है ना? पेट तो एक ही है, 10 पेट तो नहीं है। So actually
You know, the enemy has made you feel that, oh, there is so much of need. But I tell you, the need has been already fulfilled by the Lord. और शत्रु ने हमेशा हमें एहसास है कि ज़रूरतें इतनी ज़्यादा है, लेकिन हर ज़रूरतों को परमेश्वर ने आगे ही पूरा कर दिया है। Daniel chapter 7 and verse 14. तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया है कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले और सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। Amen. Amen. This is our inheritance. Again, read this. तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया। यीशु मसीह को दिया गया। किसको दिया गया? यीशु मसीह को। जोर से बोलिए, किसको दिया गया? यीशु मसीह को। तो हम कौन है? यीशु मसीह का संतान है, बेटा है, बेटी मेरा है। काम क्या है? मेरे बाप का राज्य को बढ़ाना है। मेरा पिता का जो हो वो मेरा है। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। So this applies to me and to everyone who believes this. तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। This is our ministry. Yes. This is our ministry, Sarita. This ministry that we were waiting for is opening up. Amen. And this is the ministry of this church. और ये सेविकाएं हमारी है और इस चर्च के लिए खुला गया है। इसका मतलब क्या है? अब इस चर्च से हम लोग देश दुनिया जाएंगे। मिशन ट्रिप जाएगा यहां से। साल में 4 जगह जाएंगे। एक बार दीघा जाएंगे, एक बार जाएंगे दार्जिलिंग, और एक बार जाएंगे नैनीताल, और एक बार जाएंगे इंडिया के बाहर मिशन के लिए। Amen. ये हमारा परिवार, दिस इज माय फैमिली। बाहर कहाँ जाएंगे हम लोग? और परमेश्वर के राज्य बढ़ेगा। दिस इज व्हाट गॉड इज टेलिंग, and this is a ministry. Okay, go to and we finish up Isaiah 12. When I finish it up, read the whole chapter, Isaiah 12. उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। उस दिन तू कहेगा, अब समय आ गया है, यहोवा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। Amen. Hallelujah. Receive the peace. बोलिए मेरे संग, प्रभु आपने मुझे शांति दिया। Amen. Receive the peace. Church, close your eyes and say, God give me peace. मेरा समय आ गया है, अब मेरा उठने का समय आ गया। प्रभु कठिनाई से मैंने गुजरा, अब मेरा समय आ गया, उठने का समय। Amen. Hallelujah. Hallelujah. सिस्टर अनीमा विश्वास कीजिए, बड़ा तकलीफ और दुख से गया, अब समय आ गया, और नहीं, और नहीं, आपका समय आया है। Rising time. Come on everybody. Go to the next verse. परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वो मेरा उद्धार करता हो गया है। और मैं नहीं डरूंगा। बाप रे बाप, अब क्या होगा? अब कहाँ से आएगा शैतान? इधर से आएगा ना, उधर से आएगा ना, वहां से आएगा ना, यहाँ से आएगा। अब कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं है। दरवाजा, शैतान का दरवाजा, अब मैं नहीं थरथराऊंगा। इसके पहले जो हुआ था, अरे बाप रे बाप, फिर से तो नहीं होगा, नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। और नहीं होगा। ओल्ड पैटर्न्स आर ब्रोकन, ओल्ड कवेनेंट्स आर ब्रोकन, ओल्ड सिस्टम इज ब्रोकन फॉर अस। रीड। थर्ड, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोते से जल भरोगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जाति में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। अब सारे जातियों में आप लोग जाएंगे, सारे जातियों में जाएंगे। एवरी टंग ट्राइब, पंजाबी यहाँ भी आएगा, सिंधी आएगा, गुजराती आएगा। Every people from all tribe, all language, all tribe would fill this house. Amen. This is going to be the international house of God, house of the Lord for all nations. Amen.
ये परमेश्वर का घर बनने वाला, हर राष्ट्र जाति और भाषा के लोग आने वाले। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसके प्रताप में काम किए हैं और सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हे सिय्योन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इज़राइल का पवित्र तुझ में महान है। That's it. So this is the promise. Hope you did understood what I said. मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझे जो मैंने कहा। 4 blessing from 4 corners. 4 आशीष 4 दिशा से आएगी। 4 angels at 4 corners. और 4 स्वर्गदूत 4 कोने में निर्धारित हैं। And we have a purpose for this time. और हमारे जीवन के लिए उद्देश्य है समय के लिए। And 4 beasts at the 4 corners. और 4 जानवरें जंतुएं भी 4 दिशाओं में हैं। Now you choose where you would follow. और आप चुने आप किधर जाना चाहते हैं। This is a prophetic message. This is not a simple message. और ये प्रोफेटिकल है जो आने वाले समय के संग जुड़ा हुआ है। Close your eyes. This morning the word of God is very simple, very clear. Because this is our time. और वचन बहुत ही स्पष्ट है, ये हमारा समय है। How many of you would like to stand with this word and would say, God, this word was for me and I want to make and I receive it by standing. और कौन कहेगा कि खुदा ये वचन मेरे लिए है और मैं खड़ा होकर इस वचन का एक हिस्सा, इसका मैं अपने जीवन में एक हिस्सा बनता हूँ या बनाता हूँ। Holy Spirit, Lord, Kabashikataralaba. Holy Spirit, God, Karalaba Shetaralaba. Rikabakataralaba Shataralaba. The second altar that I want to give to the people, still there is a turning back. You know, the Bible says if you repent and come to the Lord and seek His face, He is loving and forgiving. But if you only make a choice and decision, you mean it to turn your way to the Lord, then please stand up. और दूसरा वेदी की पुकार में देना चाहता हूँ कि अगर तुम अनुताप करोगे, कि तुम अपने पापों के मार्ग से लौट आओगे और परमेश्वर के संग जुड़ोगे, तो वो क्षमा करेगा, तुम्हें ग्रहण करेगा, तुम्हें वो लौटा ले आएगा, तुम्हें बंधुआई से वो छुड़ाएगा। Holy Spirit, Lord. Holy Spirit, Lord. Holy Spirit, God. Kabashikataralaba, Katarala, Kataralaba. O Shataralaba, Kantarala, Kashikataralaba. Lord, I just pray. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज सुबह यीशु मसीह आपके नाम से, प्रभु जो आज इस बुलावट को प्रभु जी अपना जीवन में विश्वास योग्यता का संग लिया है, प्रभु मैं कहता हूँ यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से उनके जीवन में एक खुली दरवाजा को वो देख पाए। इसी वक्त परमेश्वर उनको एम्पावरमेंट उन्हें मिले, उनकी मन मस्तिष्क उनकी आत्माएं खुल जाए। प्रभु जी मैं अच्छाई को पुकारता हूँ। आई कॉल फॉर फ्रीडम, खाबाशी खाबा का तरलबा। I call for deliverance, kabashi kabaka taralaba. I call for the favor and the power to come into their lives. Kibika rikabaralaba. Oh shantaralaba rakantaralaba ralaba. Lord, I just pray. यहाँ बहुत सारे लोग कश्मकश में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसके पहले तो नहीं हुआ। Let every spirit of confusion may leave you right now and you may have clarity. Oh shakabakatorulebe alababa. It's a new journey with the Lord. It's going to be prosperous. It's going to be amazing. Kabari kataralaba. Sing. Shama
यहाँ ऋतु बदल रहा है, सीजन जब ये वर्शिप हो रहा है और इस वर्शिप का बहाव में आप जा रहे हैं, there is a change in the shift of your season. आपका ऋतु बदल रहा है, That's एक worship. शिफ्टिंग हो रहा है। Holy Spirit. Little bit of that Trumpet. saxophone that you're giving. This is beautiful. The Lord is telling right now, those tormentations are leaving you. और वो Trust me. तुम्हें तंग करने वाली दुष्ट आत्माएं तुम्हें छोड़ छोड़ के जा रहा है। The tormenting demon, ताड़ना देने वाली दुष्ट आत्माएं। Sing, sing. Believe and sing this song. And believe and cry out to the King of Glory. Now the Lord is telling, which took so many years that you've been waiting upon. Now the time has come where you will see it has happened. और तुम जितने सालों से इंतजार करते उन चीजों को पूरा होने के लिए, अब तुम देखोगे कि वो चीज तुम्हारे संग बीतना शुरू हो गया Amen. है। Hallelujah. Spirit is giving you clarity. Your eyes are getting clear. और मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे आँख स्पष्ट हो रहा है और तुम स्पष्टता से देख पा रहे हो चीजों को। Maybe a physical clarity, even a spiritual clarity that was towards finding directions from the Lord in your life. और शारीरिक स्पष्टता और आत्मिक स्पष्टता दोनों ही स्पष्टता तुम्हारे आँखों को मिल रहा है। Now the Lord is going to open your eyes that you would know and see the visions that the heaven wants you to see. और परमेश्वर तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोलेगा उन दर्शनों को देखने के लिए ईश्वर चाहता है कि तुम देखो। I decree and declare the time of your pain and agony has left you. और तुम्हारा दुख, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा एगनी चला गया है। The days of your sorrows have left you. और तुम्हारे दुख के दिन चला गए हैं। Oh, your tears have left you. तुम्हारे आंसू पोंछ दिए गए हैं।
call it out. This will not come like this, okay? If you believe, you speak it out. You call it, you declare it, you prophesy it, and boom, you're going to experience that. और तुम कहते हो कि तुम्हारी मदद आ चुकी है, तो तुम्हें उसे घोषणा करना, मुंह खोलकर उच्चारण करना है। तुम्हें उन बातों को कहना है जो तुम देख पा रहे, महसूस कर पा रहे, या तुम विश्वास कर रहे हो। चुपचाप बैठे रहने से तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी वो आशीषें खुलने वाली नहीं है। Is anybody, कोई यहाँ है जो अभी तुरंत परमेश्वर ने आपको कुछ बोला? डरिए मत, सामने आके बोलिए। किसी को कुछ बोला? Did God give you a word to you, Lily? क्या कुछ परमेश्वर तुम्हें बोला? डरना नहीं, घोषणा करो, and it will happen. It will be all related to the kingdom and its expansion. और परमेश्वर जो भी बोलेगा करेगा उसके राज्य से जुड़ा होगा। Because I can see there are shifts that is taking place in life of individuals. और मैं देख रहा कि एक व्यक्ति के जीवन में बदलाहट आ रहा, माने इंडिविजुअली बदलाहट आ रहा। It is something like an empowerment is coming over, and boom, your position is shifting. And all this time, what you were doing, you would not be doing from today. It will be a new position. और अब तक आप जो करते आए थे, जैसे थे वैसे नहीं रहेंगे। अचानक से एक परिवर्तन को आप महसूस करेंगे आपके आत्मिक और शारीरिक जीवन में। And that is happening right now in और this उसकी house. स्थापना होना आरंभ हो चुका है उसके घर में। So now I want to give you an opportunity. If there is something that the Lord is kind of doing, speaking, telling, and our passion is rising into your spirit, I want you to come and speak out. Say that. अगर कोई है जिसे प्रभु कुछ कह रहा है, बोल रहा है, दिखा रहा है, तो तुम मुंह खोल के कह सकते हो चर्च के साथ। डरना नहीं। Anybody? সমস্ত জাতির কাছে গিয়ে ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করব। Amen. ঈশ্বরের রাজ্যকে বাড়াবো। Amen. এটাই God bless you. Or it's spreading. The sons and daughters. I'm prophesying over the sons and daughters. Come on, worship the Lord.
इस मंडली की मन की आंखों को खोलना चाह रहा है। तो इनकी समझदारियों को खोलना चाह रहा है, इनके कानों को तो खोलना चाह रहा है, क्योंकि तूने एक एक के लिए अच्छे वस्तुओं को रखा है, अच्छी योजनाओं को निर्माण किया है खुदा। इस मंडली की भूख और ज्ञान और सच्चाई का ज्ञान खोल दे खुदा, ताकि खुदा वो आने वाले छलनाओं के दिनों से ये बचाए जाए खुदा, और जो तेरी दी हुई प्रतिज्ञा है उनका ये लाभ उठा सके पिता। एक एक को पिता हर हानि से बचा, शैतान के झूठ से बचा, गिरने से बचा, अंत तक ये तुझ में पाए जाए और इनका उद्धार बरकरार रहे। यीशु के नाम से प्रार्थना करते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन।